Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Today we will start chapter number 15, water. Water is used for various purposes such as drinking, cooking, bathing and cleaning, right? Ponds, lakes, rivers, seas, ocean and rainwater are natural sources of water. Okay? Water is very precious and should be saved. Now, in this chapter, we will learn about uses of water, sources of water, water cycle, floods, droughts and conservation of water. Uses of water. Water is essential for our survival. If adequate water is not available, not only humans but plants and animals would also get affected. Some of the uses of water are as follows. Personal and domestic purposes. Water is used in homes for activities such as drinking, cooking, cleaning, bathing, washing clothes, brushing and watering plants. Agricultural purposes. In agriculture, water is used for growing crops such as wheat, rice, pulses, fruits, vegetables. हम सब जानते हैं कि पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हमें प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिलता है तो ह्यूमन और प्लांट्स और एनिमल्स ये अफेक्टेड हो जाते हैं. तो वाटर की बहुत सारे यूजेस हैं. जैसे हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए वाटर का यूज़ करते हैं अपने घरों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, बाथिंग के लिए या कपड़े धोने के लिए, ब्रशिंग के लिए, प्लांट्स में वाटरिंग के लिए, वाटर डालने के लिए हम बहुत सारे हमारे जो डोमेस्टिक पर्पस है उसमें वाटर का यूज़ होता है. और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी वाटर का यूज़ होता है क्योंकि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. जैसे वीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब की क्रॉप के लिए पानी की ज़रूरत होती है. तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी पानी बहुत ही ज़रूरी है. इंडस्ट्रियल पर्पसेस. इन इंडस्ट्रीज वाटर इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग दैट वी यूज़ सच एज क्लोथ्स, पेपर, ईटेबल्स, केमिकल्स, मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स. वाटर का यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है. क्लोथ्स हैं, पेपर्स हैं, केमिकल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, इनके प्रोडक्शन के लिए भी वाटर का यूज़ किया जाता है. इन रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स. वाटर इज़ यूज्ड इन द रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स सच एज कार, buses and trucks to keep their engines cool. In transportation. Water in lakes, rivers, seas and oceans is used as a mode of transportation for carrying goods and people. In seed dispersal. Water helps in dispersal of seeds of several plants such as coconut, water lily, lotus, foxglove to far off places. In generating electricity. River water stored in high dams is used to generate electricity in many parts of the world. तो जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसकी इंजन को कूल करने के लिए वाटर का यूज़ होता है. तो कार्स, बस और ट्रक के जो रेडिएटर्स हैं उसमें पानी का यूज़ होता है. और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी वाटर है, जैसे लेक, रिवर, सीज, ओशियन. जैसे लोगों को या कोई सामान को वाटर से ले जाना हो तो ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी वाटर का यूज़ होता है. और सीड डिस्पर्सल के लिए भी वाटर हेल्प करता है. जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, कोकोनट, वाटर लिली, लोटस, फॉक्सग्लोव, ये सब
डिस्पर्स होते हैं वाटर की हेल्प से। और रिवर वाटर जो स्टोर होता है उसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी होता है। जो पूरी दुनिया के जो पार्ट्स हैं उसमें वाटर का यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। रिक्रिएशन, water is also used in recreational activities such as swimming, rafting and water games. As habitat, water bodies such as lakes, rivers, ponds, seas and oceans also serve as a home to many aquatic plants and animals. In chapter 10, you have learned about aquatic habitat, rivers, lakes, ponds, freshwater habitat for different species of fish, duck, crocodile and lotus. Seas and oceans are marine habitat for a variety of fish, seagull, turtle and seaweed. तो रिक्रिएशन में भी पानी का यूज़ होता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए। रिक्रिएशन मीन्स एक्टिविटीज़ डन इन स्पेयर टाइम फॉर रिलैक्सेशन। मीन्स हम कोई भी एक्टिविटीज़ से बहुत टाइम से हम उस एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं तो हम अपने माइंड के रिलैक्सेशन के लिए हम रिक्रिएशन करते हैं। जैसे आप स्टडी से बोर हो जाते हो तो आप कुछ भी आपकी जो हॉबी हैं वो एक्टिविटीज़ करने लगते हो। तो जैसे स्विमिंग, राफ्टिंग, ये जो वाटर गेम्स हैं इसमें भी पानी का यूज़ होता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए। एज हैबिटेड मीन्स ऐसे वाटर बॉडीज़ जो हैं, लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, सीज़ है, ओशन है, ये सब क्या है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स का होम है, उनका घर है। जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स कहा जाता है। तो वो उनका हैबिटेट है। जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ये सब फ्रेश वाटर हैबिटेट हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की फ़िश, डक, क्रोकोडाइल, लोटस ये सब रहते हैं। और सीज़ और ओशन ये मैरीन हैबिटेट है। इसमें बहुत वैरायटी ऑफ फिश रहती है, सीगल रहते हैं, टर्टल, सीवीड, ये सब सीज़ और ओशन में मिलते हैं। तो ये इनके हैबिटेट के लिए भी वाटर का यूज़ होता है। सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट हैज़ अबाउट 3/4 ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। In spite of the presence of this huge amount, water that is available to fulfill domestic and industrial needs is very limited. This is due to the reason that about 97% of the total water available on the Earth's surface is present in seas and ocean. This water cannot be used as it is saline or salty. Only about 3% of the total water is fresh water, but most of it is frozen in the polar ice caps and glaciers and is not available to us. तो हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट है और इसमें 3/4 वाटर है इसके सरफेस में। वाटर का यूज़ हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के लिए हम लिमिटेड है, पर हमारी अर्थ सरफेस में 97% टोटल वाटर अवेलेबल है। और सरफेस में जो वाटर है वो सीज़ और ओशन में प्रेजेंट है, बट सीज़ और ओशन का वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सॉल्टी होता है। बट ओनली 3% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। पर जो भी ये जो फ्रेश वाटर है वो फ्रोज़न में है, जैसे पोलर आइस कैप, ग्लेशियर, वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें वाटर का यूज़ लिमिटेड करना चाहिए। Only 0.01% of the total fresh water is available to us for use. Most of the fresh water that we use to perform various activities comes from lakes, rivers, ponds, rain, spring and underground aquifers. Do you know all the fresh water that we get from ponds, lakes,
rivers and underground aquifers comes from ocean. To understand how salty water of ocean becomes salt-free and reaches ponds, rivers, lakes and underground aquifer, let us recall some property of water. तो हमारे लिए ओनली 0.01% जो वाटर है वो ही हम यूज़ कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर जो हम वेरियस एक्टिविटीज़ से करते हैं वह लेक से, रिवर से और पॉन्ड्स, रेन, स्प्रिंग और अंडरग्राउंड एक्विफर्स मीन्स जो ज़मीन की अंदर जो सतह है वहाँ पर जो पानी है वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आपको पता है जो फ्रेश वाटर है मीन्स जैसे पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, अंडरग्राउंड जो एक्विफर्स हैं, वो फ्रेश वाटर कहाँ से आता है? ओशन से आता है। बट जो ओशन का वाटर है, सॉल्टी वाटर है, वो कैसे सॉल्ट फ्री हो जाता है? जब हम उसे यूज़ करते हैं पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, जो अंडरग्राउंड एक्विफर्स हैं वो हम उसमें से वाटर का यूज़ करते हैं, तो वो सब पानी कहाँ से आता है? ओशन से। तो वो कैसे सॉल्ट फ्री हो जाता है, उसके लिए हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे।